Now discuss about the degrees of freedom. In this video, we discuss about the degrees of freedom, law of equipartition of energy, and the specific heats of the gases with the help of law of equipartition of energy. And we also discuss about the derivation of mean free path. So it's a very important video. So first of all, we discuss about the degrees of freedom. Degrees of freedom of a dynamic system may be defined as, these are the number of coordinates or independent quantities which can explain the system completely, which can explain the dynamic system completely, configuration as well as position, known as degrees of freedom. Clear? Degrees of freedom of a dynamic system may be defined as, these are the independent relations or factors which can explain the system completely, means configuration as well as position. और भी कई definitions हैं. These are the factors or these are the independent quantities or relations that how much time or how many times or how they can gain the energy from the source. कितने तरीके से वो एनर्जी गेन कर सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. क्लियर? तो वी डिस्कस अबाउट द रिलेशन. एक रिलेशन हुआ करता है और या उस रिलेशन से पहले आप जान लो, जैसे एक पार्टिकल है. इफ दिस पार्टिकल मूव्स इन एक्स डायरेक्शन, then only x coordinate is required to specifying the motion. So such particle having only 1 degree of freedom. If particle moves in a plane, it having 2 degrees of freedom. 2 coordinates are required, x and y, or y and z, or z and x. If the particle moves in a space, here we consider point mass, it also having 3 degrees of freedom, x, y, z. All 3 coordinates are required. Now, एक सिंपल पेंडुलम अगर वाइब्रेट कर रहा है, इट हैविंग ओनली 1 degrees of freedom. इसके अलावा if suppose there are 2 particles, if there are 2 particles like this, so each particle having 3 degrees of freedom, तो 3 + 3 6 हो गए. लेकिन एक फिक्स्ड रिलेशन भी है इनका, दे बाउंडेड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, सो रिड्यूस्ड बाय 1, सो द टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और इंडिपेंडेंट रिलेशंस बिकम 5 ओनली, क्योंकि एक डायरेक्शन में फिक्स हो गए. दे हैविंग फिक्स रिलेशन बिटवीन देम, देयर इज अ फिक्स रिलेशन. That's why we reduced by 1, so it become 5. और एक फॉर्मूला है इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने का, वो देखो, n equals to 3a minus r, n equals to 3a minus r. तो a number of atoms, are independent quantities or relations, and is the degrees of freedom. Now for monoatomic gases, there is a single atom, so a equals to 1. And it can move in all possible directions. It is free to move in all directions, x, y, z. The single atom, and there is no relation. जब एक सिंगल एटम है तो उसका किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा. Is free, can move in all possible directions, x, y, z. So r will be 0. So n equals to 3 minus 1, so equals to 3. So for monatomic gases,
देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और भी एक तरीका है, हमने बताया था कि कितने तरीके से सिस्टम एनर्जी गेन कर सकता है, इट इज ऑल्सो नॉन एज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो जानो, तो एनर्जी जो मिलेगी इसको एक्चुअली ट्रांसलेटरी मोशन से मिलेगी। इट कैन मूव इन एक्स डायरेक्शन, इट कैन मूव वाई डायरेक्शन, इट कैन मूव जेड डायरेक्शन। सो इट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर। जो एनर्जी मिलेगी इसको वो ट्रांसलेटरी मोशन से मिलेगी। एक्स में जाएगा तो ये एनर्जी होगी, वाई में जाएगा तो ये एनर्जी होगी, जेड में जाएगा तो ये एनर्जी होगी। तो कुल मिला के कितनी होगी? 3। क्लियर? और अब लेके चल रहे हैं हम लोग मोनो डायटोमिक गैसेस। ये हाइड्रोजन है, सॉरी हीलियम हो गया, ऑर्गन हो गया, ठीक है, नियॉन हो गया, उन सब के लिए था ये। अब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के लेके चल रहे हैं डायटोमिक गैसेस। आपको पता है डायटोमिक में देयर आर 2 एटम्स लाइक ए डंबल फॉर्मेट। इज अ डंबल फॉर्मेट। ईच एटम हैज 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ईच मॉलिक्यूल हैज 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो 3 + 3 6 हो गई, लेकिन एक डायरेक्शन में फिक्स हो गया ये। It is fixed in a particular direction. That's why R1 हो गया। So E equals to 3 × 2 - 1, तो N 5 हो गया। ऐसे जान लो, there is only one relation। एटम 2 है लेकिन रिलेशन 1 है। जैसे हस्बैंड वाइफ, they made for each other and there is only one relation। हस्बैंड वाइफ 2 हैं लेकिन रिलेशन एक ही है, मेड फॉर ईच अदर। दैट्स वाई R = 1, so N = 5। एनर्जी के टर्म्स में देख लो, एक्चुअली जब 2 एटम्स हो गए, पॉइंट मास आप लेके चल ही रहे हो, तो इनके पास ट्रांसलेटरी मोशन के अलावा रोटेटरी मोशन भी होगी। एक्स वाई जेड डायरेक्शन में रोटेट भी हो रहे होंगे। तो जो इनकी एनर्जी बनेगी, जो टोटल एनर्जी बनेगी, एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, तो कुल मिला के जो इनकी एनर्जी बनेगी हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा जेड स्क्वायर। लेकिन एक्स डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलमोस्ट 0 होगा। दैट्स वाई इक्वल्स टू हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा जेड स्क्वायर। दैट्स वाई there are 5 ways by which the system can gain energy। 5 तरीके से एनर्जी गेन करेगा ये। That's why degrees of freedom become 5। Now अब लेके चल रहे हैं ट्राइएटॉमिक के लिए। ट्राइएटॉमिक में 2 केस होते हैं, एक लीनियर एक नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब इस तरह हो गया, ये लीनियर का केस हो गया, ठीक है, लीनियर का केस हो गया।
तो आपको पता है कि ट्राइटोमिक है तो ए तो 3 हो ही गया। तीन है लेकिन रिलेशन केवल 2 ही है। जैसे सपोज ये हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गया, ये डॉटर हो गई। हस्बैंड वाइफ डॉटर, रिलेशन कितने? ओनली 2। डॉटर इज कॉमन, सो देयर आर ओनली 2 रिलेशंस। या इट इज फिक्स्ड ओनली इन वन डायरेक्शन, 2 पे इंडिपेंडेंट हो गई। तो इसीलिए n इक्वल्स टू 3 इंटू 3 माइनस 2, सो इट इज इक्वल्स टू 7। मतलब अगर आप ऐसे घुमाएंगे तब भी इसकी पोजीशन ये रहेगी, ऐसे घुमाएंगे तब भी इसकी पोजीशन ये रहेगी, और यूं घुमाएंगे तब भी इसकी पोजीशन यही रहेगी। तो एक पे फिक्स माना जाएगा, 2 पे इंडिपेंडेंट हो गया ये, इसलिए R2 हो गया। अब इसका केस एक और है, नॉन लीनियर। अब ये केस बन गया नॉन लीनियर का केस। n तो अभी भी 3 होंगे, ए तो अभी भी 3 होंगे, सो n इक्वल्स टू 3 इंटू 3 माइनस, ये फिक्स्ड है, इट इज फिक्स्ड। तीनों इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं, तीनों का कोई डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं, इसलिए 3 पे ये इंडिपेंडेंट हो गया। इट इज फिक्स्ड, ना x ना y ना z के डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। दैट्स वाई -3, सो n इक्वल्स टू 6। So it's about the degrees of freedom. Degrees of freedom may be defined as these are the independent relations, factors, quantities which can explain the system completely. दूसरी डेफिनेशन ये बनती है, these are the independent ways by which the system gain energy. ठीक है, तो हमने दोनों तरीके से आपको एक्सप्लेन किया। फॉर मोनोटोमिक आपको पता है कि फ्री होगा तो R0 हो गया तो 3 हो गया, और ये ट्रांसलेटरी मोशन के कारण इसमें एनर्जी 3 तरीके से आएगी। डायटोमिक में 2 एटम्स होते हैं और डंबल फॉर्मेट में होंगे, एक डायरेक्शन में फिक्स हो गए, तो इसमें R1 हो गया, कुल मिला के आपको 5 मिल गए। और हमने बताया कि इसमें ट्रांसलेटरी मोशन के अलावा रोटेटरी मोशन भी हुआ करती है, इसलिए हम एनर्जी के टर्म्स में बता सकते हैं। एक्स डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो दे हैविंग 5। ट्राइटोमिक में 2 केस बन जाते हैं, लीनियर एंड ट्रायंगल। लीनियर में 2 रिलेशन होंगे और इसमें 3 इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज या रिलेशन होंगे, तो दैट्स वाई n इक्वल्स टू 6। सो इट्स अबाउट द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। नाउ अब लेके चल रहे हैं हम लोग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, energy for a dynamic system distributed in a dynamic system, energy distributed per molecule per degree of freedom remains constant, it is half kT. In a dynamic system, energy distributed per molecule per degree of freedom remains constant, and is half kT, where k is the Boltzmann constant. It's a half kT. प्रूव कर देते, आपको पता है फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हाफ mc स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 kT, और हाफ m vx स्क्वायर vy स्क्वायर vz स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 kT. Molecule can move in all directions with same velocity, no matter in x or y or z direction. So half m vx square equals to half m vy square equals to half m vz square equals to, अब अगर इस तरह लेके चलेंगे तो ये फिर क्या बन जाएगा, हाफ
KT हो जाएगा, क्योंकि ये मिलाएंगे तो 3 हो गया। ये जब ये आपस में बराबर हैं तो 3 = 3/2 KT, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ½ KT। इस तरह ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हुआ करती है। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज ½ KT। ये सी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन ऑल डायरेक्शंस होती है, तो हमने ऐसे कर दिया, ये आपस में बराबर होंगे, इसलिए इंडिविजुअल के लिए क्या आएगी, ½ KT। इट इज द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। नाउ अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी में लेके चल रहे हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैसेस विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसमें आपको पता है कि एनर्जी जो होगी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल ½ KT थी। मोनोएटॉमिक गैसेस के लेके चल रहे हैं। फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस आपको पता है यहां पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 हुआ करती थी। तो एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, 3/2 KT। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 3/2 KNT। N into K, N is the Avogadro's number, 3/2 RT हो गया, ये एनर्जी आ गई। If dE is the small amount of energy required to raise the temperature of unit mass of the gas by 1 degree Celsius at constant volume, then dE equals to 1 CV delta T, तो CV equals to dE upon dt, और इट इज 3/2 R, क्योंकि जब उसको लेके चलेंगे तो क्या आएगा, 3/2 R। तो मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए CV की वैल्यू कितनी होगी, 3/2 R। आपको पता है CP, CV प्लस R होता है, तो ये जाएगा 5/2 R। रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट होता है CP अपॉन CV, तो हो जाएगा 5/3। तो मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए CV हो जाएगा 3/2 R और CP हो जाएगा 5/2 R। नाउ और अब डायटोमिक के लिए फॉर डायटोमिक गैसेस आपको पता है कि डायटोमिक के लिए 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हुआ करते थे। तो एनर्जी पर मॉलिक्यूल हो जाएगा 5/2 KT, 5/2 KT। नाउ और अगर टोटल एनर्जी निकालना चाहें तो फाइव बाई टू KNT, तो हो जाएगा 5/2 R। ठीक है, 5/2 RT। अगेन अगर DE is a very small amount of energy required for gases at constant volume, then CV equals to DE upon DT, तो ये जाएगा 5/2 R। यानी कि डायटोमिक गैसेस के लिए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगी, 5/2 R। तो CP कितनी हो गई, 7/2 R। गामा इक्वल्स टू CP अपॉन CV इक्वल्स टू 7/5। ये डायटोमिक गैसेस के लिए आ गया। ठीक है, और फॉर ट्राइएटोमिक
उसमें दो केस हुआ करते थे, लीनियर लेके चल रहे हैं। आपको पता है लीनियर के केस में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 7 हुआ करती थी। तो उसमें अगर हम देखें तो टोटल एनर्जी अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो जाएगी 7/2 RT। तो सी भी जाएगा DE अपॉन DT इक्वल्स टू 7/2 R। तो CP हो जाएगी 9/2 R। तो गामा हो जाएगा इसके लिए CP अपॉन CB 9/7। नाउ फॉर नॉन लीनियर, नॉन लीनियर के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 हुआ करते थे। तो टोटल एनर्जी बनेगी विल बी 6/2 RT यानी कि 3 RT। CB जाएगा DE अपॉन DT 3R। तो CP जाएगा 3R प्लस R इक्वल्स टू 4R। तो गामा हो जाएगा CP अपॉन CB, इट इज 4/3। अब ये कितनी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? आप देखो कि कॉम्पिटिशन्स में या किसी भी क्वेश्चन में इस तरह दिया नहीं होगा ये डायटोमिक या ट्राइटोमिक या CP और CB के बारे में नहीं पता होगा। ये आपको याद होना चाहिए कि मोनोटोमिक के लिए CB 3/2 R होती है और CP 5/2 R होती है और गामा 5/3। डायटोमिक के लिए आपको पता होना चाहिए CB 5/2 R, CP 7/2 R और गामा 7/5। ट्राइएटोमिक में दो केसेस हुआ करते हैं, एक में 9/7 तो दूसरे में 4/3। न्यूमेरिकल देखो एक, तब आपको मालूम पड़ेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस। अब जैसे एक न्यूमेरिकल है और इस तरह है कि 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज एनक्लोज्ड इन अ वेसल at a temperature of 27 degrees Celsius. How much heat has to be given to the gas to double the RMS velocity of the molecule? अब ये क्वेश्चन है। तो मेन चीज़ ये है कि आपको पता है कि जो नाइट्रोजन है वो डायटोमिक गैस है, तो इसमें CB 5/2 R हो जाएगा। अब इसमें आपको पता है कि जो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जानो पहले। क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो M हो गया और टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन हो गया ये। T2 चाह रहे हैं हाउ मच हीट हैज टू बी गिवन टू द गैस डबल द RMS वेलोसिटी। आपको पता है कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ T है, ठीक है। तो T ये हो जाएगा, डबल का मतलब है T। अब ये T1 T2 कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 300 1200 केवल, और Q निकलवा रहे हैं, ठीक है। 14 ग्राम ऑफ हाउ मच हीट हैज टू बी गिवन टू द गैस टू डबल द RMS वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आप देखो कि जो N होगा दैट इज 0.014, क्योंकि इसको
कन्वर्ट कर दिया गया है 1000 ग्राम अपॉन 28 ग्राम, यहां से मिलेगा 0.5। नाउ अब जरा आपको पता है कि Q इक्वल्स टू N CV डेल्टा T लगना है, और CV 5/2R होती है फ्रॉम द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। 0.5 5/2 8.31 और डेल्टा T हो जाएगा 1200 माइनस 300। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9360। तो अगर हमें ये नहीं पता होता, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, ये इंपॉर्टेंस है। और अब हम लोग लेके चल रहे हैं डेरिवेशन ऑफ मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ मीन्स, मीन फ्री पाथ इज द डिस्टेंस covered by the molecule during two successive collision. That is not a mean free path. It is represented by lambda. ये lambda से रिप्रेजेंट हुआ करती है, और हम इसका डेरिवेशन निकाल रहे हैं। और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि बाकी सारे मॉलिक्यूल्स रेस्ट में है, केवल यही मॉलिक्यूल चल रहा है, ओनली दिस मॉलिक्यूल मूव। ये मान के चल रहे हैं हम लोग कि सिर्फ यही मॉलिक्यूल मूव कर रहा है। तो इस पोर्शन में, इस वॉल्यूम में जितने भी और मॉलिक्यूल्स आएंगे उनके साथ इसका कॉलिजन होगा। मतलब जो वॉल्यूम बनेगा पाई डी स्क्वायर एल, अगर एल इज द लेंथ, इतने वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही इसके कॉलिजन्स होंगे। ठीक है, अगर n इज द नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स n पाई डी स्क्वायर एल। मीन फ्री पाथ इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन नंबर ऑफ कॉलिजन्स, L अपॉन n पाई डी स्क्वायर एल। So it is equals to 1 upon n pi d square। लेकिन ये मीन फ्री पाथ तब तक वैलिड है जब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि केवल एक मॉलिक्यूल मोशन में है, बाकी के रेस्ट में है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सारे मॉलिक्यूल्स मोशन में होते हैं। और जब सारे मॉलिक्यूल मोशन में होंगे तो एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू कैलकुलेट की गई वो मिली लैम्डा इक्वल्स टू 1 अपॉन और √2 n पाई डी स्क्वायर। तो ये मिली लैम्डा इक्वल्स टू 1 अपॉन √2 n पाई डी स्क्वायर। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है। तो हम लोग ये यूज किया करते हैं 1/√2 n पाई डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये यूज किया करते हैं। और mn इक्वल्स टू रो, सो n हो जाएगा रो बाई m। तो एक और फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, m अपॉन और √2 पाई डी स्क्वायर रो। ये भी फॉर्मूला बन जाता है। तो ये मीन फ्री पाथ के लिए था, और ये भी अच्छा एक डेरिवेशन है। और पूछ लेते हैं, कई बार एग्जाम में ये डेरिवेशन भी आ जाता है। क्लियर?